I'm Dr. Mustaja Mustafa. Some of you might know me. It's good that I have a few new house officers here as well, जो कि एक्चुअली अपनी हाउस जॉब स्टार्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाउस जॉब में सबसे ज़्यादा आपने ब्लड प्रेशर ही चेक करना है, गेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिमेंबर इन माई हाउस ऑफिसर डेज उस वक्त इतने ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर ऐप्स नहीं आते थे, ये जो लोग अब लेके घूमते हैं. एक हमारे पास हाउस ऑफिसर थी, वो आई, उनको मैंने बोला एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें. तो मुझे लगा कि अब स्टेथ और एक एंड्रॉयड या एनलॉग वाला कोई बीपी ऐप आएगा. वो ऑटोमेटेड बीपी ऐप ला के उसने बेड साइड पे रखा और उसने बटन दबाया और यूं खड़ी हो गई. फिर उसने बीपी चेक किया. मतलब ये अब एडवांसेस इतने आ गए कि लोग अब 2 सेल डाल के और फिर हाउस जॉब करने आ जाते हैं. हम ये स्टेथ लगाते थे, ये चेक करते थे, एंड बाय द टाइम हमारी शिफ्ट एंड होती थी हमारी उंगलियों पे निशान होते थे. इतनी बार हमें कफ इन्फ्लेट करना पड़ता. तो आई थिंक ये चेंजेस हैं, एवरीवन अडेप्ट्स टू इट. आई थिंक गुड 10-12 years later मे बी वो तो अब देख के ही शायद ब्लड प्रेशर चेक हो जाए लोगों का, है ना. बट देन एट द एंड ऑफ द डे द मेन रीजन एंड द मेन वे ऑफ चेकिंग द ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये ऑटोमेटेड से आप कर रहे हैं, यू यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, यू डूइंग अ पैल्पेटरी. इफ़ यू डोंट नो द वे ऑफ डूइंग इट, आई थिंक उसके अंदर फिर बहुत सारे फ्लॉज आ जाएंगे. दिस माइट सीम अ लिटिल ऑब्सलीट टू यू गाइस के इस लेवल पे भी हमें बीपी चेक करना सिखाया जा रहा है. तो कुछ लोग शायद इतने इंटरेस्ट से ना देखें इस चीज़ को, बट देन यू विल सी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू ब्रिंग इनटू कंसिडरेशन विच वी हैवंट येट एवर कंसिडर्ड. एक होता है कि कभी किसी चीज़ को कंसिडर किया, कभी किसी को किया. अब आपको ऐसा लगेगा यार ये 4 चीज़ें तो मैंने आज तक सोचा भी नहीं कि मैंने ब्लड प्रेशर लेते हुए कंसिडर भी करना. ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई हैव एक्चुअली लेबल्ड दिस एज एन आर्ट नॉट नोन बाय मैनी. ठीक है. एंड introduction is very important. Why is it actually important to check blood pressure? So a 20 millimeter mercury rise in systolic and a 10 rise in diastolic with each associated with doubling in the risk of stroke, heart disease and vascular disease. So every 20 rise in systolic and 10 rise in diastolic doubles the risk of disease, right? And in other studies there are about more than 1 million adult patients more than 30 years of age. Higher systolic diastolic pressures were associated with increased risk of cardiovascular disease, angina, MI, heart failure, stroke, peripheral artery disease, aortic aneurysms, each evaluated separately. So all of these increase. So you can develop aneurysms, you can develop peripheral artery disease, angina, MI, heart failure, stroke. ये तो सारे nightmares है ना. So every rise of 20 systolic and 10 of diastolic actually increases the risk, perhaps doubles the risk. So to know the blood pressure and how to check it, you actually need to know what your cutoffs are. These are recent guidelines as per American College of Cardiology. Normal blood pressure anything below 120/80, and then elevated anything between 120 to 129, and still less than 80 is elevated, right? Hypertension then is divided into a couple of stages, stage 1 and 2. Stage 1 is 130 to 139, 80 to 89 of diastole, and then stage 2 is 140 above systolic and 90 above diastole. So this is very important. You need to know these numbers. Talking about prevalence of hypertension, I don't think it's a very busy slide, but the most important thing is the last row that you see, the Asian population. You can see systolic blood pressure more than 130/80 self-reported, 45% in men and 36% in women. People are checking their blood pressure and 45% of them actually turned out to be hypertensive, more than 130/80. And then if you talk about 140/90, 29% in Asian population in men and 27 in women. There is difference. Obviously the prevalence is more in male, but the numbers are not very slim in females. So female don't need to feel very protected about it, right? We do talk about protection in MI and strokes, but in hypertension females are not protected in the same manner. Importance of home blood pressure monitoring. You need to educate your patients why is it important and how to take them. So take blood pressure at home twice in the morning, twice in the evening. Somebody who's recently diagnosed with hypertension, they need to have a good look at their blood pressures in the week before the clinic. Bring in the BP machine annually for validation. How many of you actually have this automated BP app and this analog and mercury ones, and how many of you actually have taken your apparatus for validation to the company, back to the company? इन सब की वैलिडेशन होती है, ये रीचेक होते हैं. कंपनीज एक्चुअली इसको चेक करती हैं कि इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड इश्यूज तो नहीं है, उसके जो मीटर्स हैं, इसकी जो नीडल्स हैं वो अप्रोप्रिएटली बढ़ी नहीं बढ़ी. कभी कभार कुछ लोगों के पास बीपी ऐप होता है, उनका जो
नीडल है वो 0 से नीचे जा रही होती, फिर वो बीपी चेक कर रहे हैं। कुछ लोगों की स्टार्ट 10 से हो रही होती, फिर वो कैलकुलेट करते हैं, हाँ 150 आ रहा है, मेरा 140 होगा क्योंकि मैं स्टार्ट 10 से ले रहा हूँ। ये तो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन गाइडलाइन डिफरेंसेस, ये एक चार्ट है बहुत सारी चीज़ों का जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर रीडिंग्स बताई गई हैं। सो ऑन योर लेफ्ट इफ यू सी ऑफिस क्लिनिक बीपी, ऑफिस बीपी या ऑफिस क्लिनिक बीपी का मतलब ये कि अमेरिकन यूज क्लिनिक या ओपीडी को वो ऑफिस बोलते हैं। सो डॉक्टर का भी वहाँ पे एक ऑफिस होता है, हमारा कभी ऑफिस नहीं है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर का भी एक ऑफिस होता है, ठीक है। तो ओपीडी को वो ऑफिस बोलते हैं। तो ऑफिस बीपी 130/80, एसीसी के हिसाब से, ईएससी यूरोपियन सोसाइटी सेज 140/90। Then daytime, night time is different. Night time, you can see the cutoffs are lower. 110/65 for Americans and 120/70 for Europeans. Again, 24 आवर अगर आप मीन चेक कर रहे हैं तो वो भी लोअर साइड पे ही होगा क्योंकि वो नाइट टाइम को इन कंसिडरेशन लाता है, सही है। 110/75 यूरोपियंस के लिए, 130/80। होम ब्लड प्रेशर 130/80, अगेन सिमिलर। BP targets for treatment, again your target will always be less than 130/80. No matter how many medications you have to use, your targets will remain less than 130/80. Simple as that, ठीक है। कॉम्बिनेशन थेरेपी किसको दें? अब ट्रीटमेंट के प्रोस्पेक्ट से हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये होता है कि मैं एक सिंगल ड्रग दूं, 2 एक साथ दे दूं, ये इतने कॉम्बिनेशन पिल्स अब आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनिशियल कॉम्बिनेशन थेरेपी इन ऑल दोज पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर इज 20/10 अबव द कट ऑफ। सिंपल एज दैट, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। अब मेजरमेंट डेफिनेशंस क्या होती हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट साउंड, द फर्स्ट साउंड दैट कम्स इन वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिफ्थ ब्रॉडकास्ट साउंड और डिसअपीयरेंस ऑफ साउंड, ठीक है। उसके बाद पल्स प्रेशर इज ऑलवेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना है। उसके अलावा मीन आर्टेरियल प्रेशर इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ योर पल्स प्रेशर। एंड मिड ब्लड प्रेशर, इस पर भी कुछ स्टडीज़ हैं कि मिड ब्लड प्रेशर जो होता है सम ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिवाइड बाय 2, इसकी भी अगर ये भी एलिवेटेड है, इसके भी अब स्टैब्लिश रिस्क है कि ये भी स्ट्रोक, एमआई और इन सब के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल पॉइंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन इज हाउ टू बेसिकली मेजर द ब्लड प्रेशर। सो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज बिकॉज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी होगी, वी विल हैव एन आर्टिस्ट टू टीच यू द आर्ट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जस्ट क्विकली स्टेप 1 हाउ टू प्रिपेयर दिस पेशेंट। नाउ ये जो प्रिपरेशन की ये बात कर रहे हैं, ये दिस इज इन योर ऑफिस, ये क्लिनिक के अंदर है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में है, वार्ड में है, ये एक डॉक्टर जो है ना आपका चेक कर रहा है, ये घर पे चेक नहीं हो रहा है, ये आप चेक कर रहे हैं इन द हॉस्पिटल। सो यू हैव द पेशेंट रिलैक्सिंग, सिटिंग इन अ चेयर, फीट ऑन द फ्लोर, बैक सपोर्टेड फॉर मोर देन 5 मिनट्स। स्टूल पे ब्लड प्रेशर चेक हो रहे हैं, खड़े खड़े ब्लड प्रेशर चेक हो रहे हैं, आई डोंट नो डिफरेंट सिचुएशंस में हो रहे हैं। The patient should avoid caffeine, exercise, smoking for at least 30 minutes. You need to ask this question to your patients कि लास्ट 30 मिनट्स के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम तो नहीं की है जो आपके ब्लड प्रेशर रीडिंग्स को वैरी कर सकती है, ठीक है। Ensure the patient has emptied his or her bladder. Nobody is asking these questions. उससे कोई कंसर्न ही नहीं है, ये यूरोलॉजी क्लिनिक थोड़ी है ना, कोई ब्लैडर की बात कर रहा है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Neither the patient nor the observer should talk during the rest period or during the measurement. You're taking blood pressure, लोग हिस्ट्री भी साथ ले रहे होते हैं, आपको बीपी कब से है, हाँ कब से है बीपी, वो चल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिमूव ऑल क्लोथिंग कवरिंग द लोकेशन ऑफ कफ प्लेसमेंट। अबायों के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर, कोट्स के ऊपर, ये सब के ऊपर ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। सो आई डोंट थिंक दैट इज वो आपको रीडिंग्स पर वो इतनी जस्टिफाई है, फिर उस पर आप ट्रीटमेंट चला रहे हैं, या तो ट्रीटमेंट ऐसी दे दी पेशेंट हाइपोटेंसिव वापस आ रहा है, या 190 के प्रेशर के साथ वापस आ रहा है, इतनी मिस रीडिंग्स आ रही हैं। मेजरमेंट मेड व्हाइल द पेशेंट, जी lying on an examining table do not fulfill these criteria, ठीक है। तो आइडियल मेजरमेंट विल ऑलवेज बी जो इस तरह चेयर पे सपोर्टेड बंदा बैठा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 2, now you have to preparation is done, now you are using the proper technique of blood pressure measurement. So use a BP measurement device that has been validated and ensure that the device is calibrated periodically. Again वही calibration की बात है कि people don't get their devices calibrated here. Support the patient's arm, it should be resting on a desk. Position the middle of the cuff on the patient's upper arm at the level of the right atrium, that is the midpoint of the sternum. So the arm has to be
at the midpoint of the sternum, not hanging, not supported. वो उसकी लैप में रखी हुई है, कुछ लोग लटक के ऐसे ले रहे हैं, I don't know, all sorts of things happen. ठीक है, use the correct size. A correct size of the cuff such that the bladder encircles 80% of the arm. And note if a larger or smaller than normal size is used. ठीक है, if you're using a bigger size, आपने mention करना है अपनी reading में this was taken by a bigger size cuff than what the patient's requirement was, right? Either the stethoscope, diaphragm or bell, ये दोनों चीजें आप use कर सकते हैं. Now you have to take proper measurements needed for diagnosis and treatment. At the first visit, record the blood pressure in both arms, right? Left and right दोनों का आप लेंगे. बहुत सारे diseases इस तरह आप uncover कर सकते हैं if they have discrepancy between left and right. Use the arm that gives the higher reading for subsequent readings. So आपने जो है ना, यू हैव टू चूज द डेविल, जिस आर्म में ज़्यादा ब्लड प्रेशर आएगा उसी से आपने ब्लड प्रेशर लेना है नेक्स्ट टाइम भी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये इसका हायर रीडिंग है, ट्रीट उसको करेंगे. लोअर रीडिंग को आपने मिसरीड नहीं करना. द हायर रीडिंग विल एक्चुअली गो डाउन एज द प्रॉपर रीडिंग. सेपरेट repeated measurements 1 to 2 minutes apart, right? For auscultatory determination, use a palpated estimated of radial pulse obliteration pressure to estimate systolic blood pressure. Inflate the cuff 20-30 millimeters of mercury above the level of an auscultatory determination of the BP level. ये बात समझ आई किसी को? हाँ, नहीं आई? बहुत मुश्किल इसने 3 जुमले कहे हैं, है ना? Auscultatory determination, use a palpated estimate of radial pulse obliteration. सही है. तो वो कह रहे हैं कि पहले you don't have to put in a stethoscope on you. You have to check the palpatory pressures. वो obliterate हो गया मतलब you have exceeded the systolic pressures. You go above and beyond 20 to 30 millimeters that, and then you start auscultating. ठीक है. Unnecessary किसी को, somebody is having a blood pressure of 90/60, you don't need to actually give them the ट्रॉमा कि उनका कफ आप 200 तक इन्फ्लेट करें. 90-60 के बीपी वाले का 200 तक इन्फ्लेट कर रहे हैं, वो तो ट्रॉमेटिक हो गया उसके लिए. ठीक है, उसको 120 भी उसके लिए काफ़ी. ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. प्लीज़ ये टेलर फिट चीज़ है, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते. ठीक है. फॉर ऑस्कल्टेटरी रीडिंग्स, डिफ्लेट द कफ प्रेशर 2 per second and listen to the sounds. Sometimes we are deflating so quickly कि वो बस निकल ही जाता है. सही है. So it's 2 per second. बहुत ही स्पेसिफिक सा है, लेकिन इसका the message that we're trying to give is that should be a slow deflation. That's it. कि आप बहुत rapidly उसको deflate ना करें. Step 4 is properly document accurate blood pressure readings. So record the blood pressures. If using auscultatory technique, record systolic, diastolic as onset of the first sound and disappearance of all sounds. Nearest even number से आप उसको equalize करें. ठीक है. ऑड नंबर्स में कह रहे हैं कि नहीं करें भाई. 131 है, उसका नियरेस्ट इवन क्या होगा? 130 या 132 होगा ना. ऑड इवन तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको. सही है. नोट द टाइम ऑफ मोस्ट रीसेंट ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस टेकन बिफोर मेजरमेंट्स. ठीक है. सो यू नीड टू चेक द टाइम ऑफ मोस्ट रिटेन बीपी ब्लड. अब आपने ये भी पूछना है उससे कि आपने लास्ट मेडिकेशन कब ली थी, उससे रिलेशन के अंदर आपने बीपी चेक करना है. मैं फला एम्लोडिपिन लेता हूँ, रात को 10 बजे मैंने बीपी चेक किया, सुबह 8 बजे. उसकी ब्लड प्रेशर रीडिंग के साथ उसकी मेडिकेशन का टाइमिंग भी लिखा हुआ होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इज ड्यू इज मेडिकेशन इन लाइक 30 मिनट्स. सुबह 9 बजे मैं जो हूँ अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेता हूँ, 8:30 बजे ब्लड प्रेशर चेक किया, 150 आ रहा है, 140 आ रहा है. आप बोलेंगे ठीक है, इसका तो ब्लड प्रेशर के दवा ड्यू है, आप दवाएँ बढ़ा रहे हैं. सो दिस इज नॉट राइट. यू नीड टू नो कि इनकी टाइमिंग्स ऑफ मेडिकेशन क्या थी. सही है. So step 5, average the readings. Use an average of 2 or more obtained on 2 or more occasions to estimate an individual's level of blood pressure. 2 more readings on 2 different occasions. ये different definitions के अंदर वैसे भी लिखा हुआ. ठीक है. Step 6 finally is BP readings to the patient. आप provide करें systolic blood pressure readings both verbally and in writing to your patient. वो बता दे हाँ आखिरी बार 150 था और वो मेमोरी से रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. नो, उसको डॉक्यूमेंट करके दें आप. दिस डेट, दिस टाइम, राइट आर्म इतना, लेफ्ट आर्म इतना, ये आपकी मेडिकेशन की टाइमिंग इतनी, ये आपकी कागज़ पे लिखा होगा. एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो ऐसी होगी. दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे, राइट. ये ब्लड प्रेशर के लिए
कि उसकी टांगें सीधी हों बिल्कुल, उसकी कोशिश करेंगे कि ये जो स्लीव्स हैं ऊपर हों, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर है, इसको हम स्फाइगमोमेनोमीटर कहते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसकी आर्म जो है हार्ट की साइड पे रखेंगे, ठीक है, हार्ट से ऊपर नहीं हो या नीचे ना हो। उसके बाद इस पे लेबल है कि एरो लगा हुआ है कि ये आपने कहाँ रखना है। ये राइट आर्म है तो राइट आर्म पे हम जो है एरो इसकी ब्रेकियल आर्टरी पे रखेंगे, थोड़ा ऊपर 2 इंच ऐसे इसको बांधेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मीटर जो है ये सामने ही ऊपर रहे ताकि आपको देखने में इजी रहे। उसके बाद ये आपको जब क्लॉक करोगे तो ये लॉक होगा, एंटी क्लॉक करोगे तो अनलॉक होगा। स्टेथोस्कोप से ये ब्रेकियल आर्टरी पे इसको रखेंगे, ये हाथ खोल देंगे। उसके बाद इसको मैं क्लॉक करूँगा और ये इसमें पुशअप करूँगा तो एयर इन होना शुरू हो जाएगी और ये रीडिंग अप होना शुरू हो जाएगी। अब इसको मैं स्लो जो ऐसे सर ने बताया कि हम इसको डिफ्लेट करते जाएंगे। इसमें हम जो देखते हैं कि फर्स्ट साउंड आएगी वो मीटर पे किस रीडिंग पे आई, वो फर्स्ट साउंड जो है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो लास्ट वन है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो इसका जो मैंने चेक किया 100/60 आ रहा है। यंगस्टर शायद खाया पिया नहीं है, नाश्ता नहीं किया सर उसने, तो ब्लड प्रेशर इसका कम चल रहा है। Check this blood